morning, students. Today we discuss about the autosomal inheritance, which are asked for maybe sometimes according to data as a 1 mark and sometimes maybe for the short note as 2 marks. But first one we have to know that in human being, from a lower classes we have to know in a cell of woman, in a nucleus, as DNA have to consist of the number of chromosomes exactly maybe the 46. Okay. Out of 46, also we have to know that 44 are the autosomes. Okay. And maybe 2 are the sex chromosomes. So 44 autosomes may be considered as to be the 22 pairs of an autosomes and considered as 2 sex chromosomes as a 1 pair of sex chromosome. Such a 1 pair of sex chromosome which can be determined as the participated in a borning of a male child or the female child. In a male child there may be presence of a sex chromosomes as to be the X and Y, and in a female child there may be presence of an X and X chromosome. Okay. So in this way we have to conclude that in a human being there may be 23 pairs of the chromosomes. But out of 23 pairs of chromosomes, 22 pairs are the autosomes, otherwise considered as the 44 autosomes. Okay. Then sex chromosome which are to be participated mainly be in a sex determination, or otherwise it may be represented to involved to appear to express the characters regarding to the sex, or maybe some traits which are to be regarding to the sex. जो भी सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, उससे रिलेटेड जो भी उसे डिफरेंशिएट करने वाला, मेल को मेल बॉडी की तरह अपियर करने वाला, फीमेल को फीमेल बॉडी की तरह डिफरेंशिएट कैरेक्टर रिगार्डिंग टू ओनली सेक्स, ये अगर कैरेक्टर देता है तो ये कैरेक्टर कौन देता है? सेक्स क्रोमोसोम देता है. ओके. रादर देन ऑटोसोम्स क्या करते हैं? यस, ऑटोसोम्स में भी इनहेरिट द वेरियस, एक नहीं कई सारे सेक्स कैरेक्टर तो गिने चुने होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कैरेक्टर्स टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे तो वेरियस नंबर ऑफ होते हैं. तो वेरियस बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, कि हमारी बॉडी में अगर सेक्स से रिलेटेड कैरेक्टर को छाट दे तो कंसीडरेशन में वेरियस नंबर्स ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं. वो वेरियस नंबर्स ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स कौन देता है? ओनली एंड ओनली द ऑटोसोम्स. इस वजह से नंबर भी इनका ज्यादा है. कैसे है? 44 है और सेक्स कितने? ओनली 2. या कंसीडर करते हैं कि 22 पेयर्स और ये कितनी है? ओनली 1. तो इसका डिफरेंशिएट यही पता चल जाता है कि ये इतने सारे क्रोमोसोम से तो नेचुरल है, वेरियस नंबर्स ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स देते हैं, और ये सिर्फ एक पेयर है तो नेचुरल है इज रिगार्डिंग टू लिटिल कैरेक्टर्स रिगार्डिंग टू सेक्स. ठीक है, थोड़े से कैरेक्टर लेकिन सेक्स को अपीयर करने वाले और ये बॉडी को अपीयर करने वाले. ओके. उसी वजह से कभी एक मार्क के लिए डिफाइन पूछा जाता है तो उसमें व्हाट आर द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. सो इन ऑटोसोमल इनहेरिटेंस वी हैव टू नो दैट ट्रांसमिशन ऑफ एन बॉडी कैरेक्टर्स रादर देन द सेक्स. यस, सेक्स के अलावा वो मेल है, मेल को मेल बॉडी करके जन्म देने के लिए उसमें मेलनेस लाने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टर may be considered to trait which are shown as appear of the beard, may be appear as to be the mustache, may be appeared as to be strong muscles, may be appeared as to be the broad voice, may be considered to appeared as an body structure in a width, चौड़ी बॉडी जिसे बोलते हैं. तो इस तरीके से जो जो appearance है may be considered internally have to presence of an male gonads and may be considered to have presence of an giving rise to be the male sexual organs, so and so and so. तो जो भी सेक्स रिलेटेड है वो सारे कैरेक्टर्स कौन देगा? मे बी सेक्स क्रोमोसोम्स देंगे. लेकिन उसके अलावा भी उसके बॉडी में मे बी स्ट्रक्चर ऑफ द नोज, मे बी प्रेजेंस ऑफ द आईज, मे बी स्किन हैज टू बी वेरियस शेड, हेयर हैव अ specific length of the gene considered as to may be giving as the thick and thickness as well as the thinness in a hair, also color of the hairs in a various shade. So these are considered as the body characters. So here is maybe transmission of body characters rather than the sex or sex related traits or characters, but from parents to their offspring. Yes, there is a specificity from their own parents to their offspring. So through which, through the autosomes is called as to be the autosomal inheritance. Consider इसमें वही कैरेक्टर जो उसके पापा के या उसके मम्मी के या पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बच्चे में वही कैरेक्टर्स देगा. स्पेसिफिसिटी है, किसी दूसरे के नहीं. उन्हीं
पापा मम्मी के कैरेक्टर्स उनके ही बच्चे में देगा, लेकिन रिगार्डिंग टू बॉडी कैरेक्टर्स बट not involved for as appearing the sex characters. So such a type of inheritance or the transmission of a pattern of the character also. इसी को inheritance को transmission of the pattern of characters कहा जाता है. तो इसे one word is the heritance or maybe inheritance, that is from one to another, that is first generation to the another generation. So through which autosomes is called as to be the autosomal inheritance. Sure? Okay. अब इसमें उसने कहा है कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में भी जैसे हम लोग बोलते हैं कि इफ देयर में बी वन हु हैज द डोमिनेंट पेयर एंड वन हु हैज टू बी द रिसेसिव पेयर, तो यस देयर में बी ऑन ऑटोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में से जो भी ऑटोसोम्स है वो ऑटोसोम्स पर भी कुछ जीन्स होमोजाइगस डोमिनेंसी में है तो कुछ जीन्स में भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंसी में है. होमोजाइगस डोमिनेंसी में है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंसी में है. हमने अभी अभी कहा है कि ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. तो नेचुरल है, पेरेंट्स मींस टू व्हाट, द पेयर विच कैन बी इन्वॉल्व, वन हु पैटर्नल एंड वन हु मैटरनल. तो एक उस ऑटोसोमल पेयर में से किससे आया है, मदर से आया, तो एक किससे आया है, फादर से आया. तो मदर फादर का अगर डोमिनेंट जीन अगर पेयर कर लेता है तो दैट इज द डोमिनेंट होमोजाइगस पेयर. और एक फादर का अगर डोमिनेंट जीन है लेकिन मदर का अगर रिसेसिव जीन है तो दैट इज मे बी द डोमिनेंट हेटेरोजाइगस पेयर. दोनों रिसेसिव है, मे बी फादर का भी रिसेसिव है और मदर का भी रिसेसिव है, तो दैट मे बी कंप्लीटली अ रिसेसिव होमोजाइगस पेयर. श्योर श्योर. कैपिटल टी इज द डोमिनेंट होमोजाइगस पेयर. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेयर. बट स्मॉल टी इज द रिसेसिव होमोजाइगस पेयर कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू मेंडल. बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी दिमाग में फिट करना है. फिर उसके ऊपर से उसने दो तरह की ऑटोसोमल इनहेरिटेंस बताए हैं, एक मे बी डोमिनेंट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और दूसरा है रिसेसिव ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस बाय ऑटोसोम्स विडोज पीक और दूसरा हंटिंगटन्स डिसऑर्डर. अब विडोज पीक क्या है आपके सामने थोड़ा सा नजर आ रहा है. मैं बता दूं कि हंटिंगटन्स डिसऑर्डर क्या है या डिसीज क्या है या कभी कभी से एब्नॉर्मलिटी बोलेंगे. हंटिंगटन्स का मतलब है हंटिंगटन्स वन हु साइंटिस्ट व्हिच कैन बी जस्ट पुट फॉरवर्ड सच टाइप ऑफ द एब्नॉर्मलिटी. तो मतलब ये डोमिनेंट जीन है. यस, ये दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन वाले हैं या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन भी हो सकता है, जिसमें से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव या दोनों डोमिनेंट जीन होंगे, लेकिन उस पर्सन में मे बी इनबॉर्न भी हो सकता है या कभी कभी अचानक से थ्रू द एज लिमिट देयर में बी कैरिंग द वीकनेस. जैसे हम लोग बड़े बड़े होते हैं या मे बी नियरली आफ्टर 35 हो जाते हैं, तो आफ्टर 35 के बाद हम लोग थोड़ा सा ओल्ड महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं. व्हाई? बिकॉज आवर ग्लैंड्स which can be ceased to secrete the hormones and enzymes, also our organs are to be ceased to weakness. हमारी जो ग्लैंड्स होती है जिनके बेस पर जो सिक्रीशन करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स, जिसकी वजह से हमारी टॉप टू बॉटम पूरी लाइफ प्रोसेसेस कैरी होती है और हमारी बॉडी एक रेगुलरिटी में और नॉर्मेलिटी में चलती है, स्ट्रेंथ पे चलती है. लेकिन यही ग्लैंड्स अगर कमज़ोर हो जाए और सिक्रीशन कम ज़्यादा कर दे तो जिस वजह से अपने आप में एबनॉर्मेलिटी आती है. अदरवाइज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे जो ऑर्गन्स है ये ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं. तो नेचुरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे ऑर्गन कमज़ोर होते हैं. मतलब क्या होता है, टिश्यू कमज़ोर, सेल कमज़ोर मतलब हमारे जीन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं. तो उस समय में भी कभी कभी हंटिंगटन्स डिसऑर्डर या डिसीज अपीयर होना शुरू हो जाता है. तो कहा जाता है कि हमारी ब्रेन में जो डायनसेफेलन है, ये सीधा सीधा आप समझ लो कि हमारा ब्रेन जो है उस ब्रेन में कुछ ऐसे टिश्यूज़ है, ऐसा कुछ पार्ट है जो अपने आप में अचानक से कमज़ोर हो जाता है. इन जीन्स की वजह से उसे जो नरिश करने वाला जो सिक्रीशन बनता है या उसे ऑर्डराइज करने वाला जो जीन है वो अचानक से एबनॉर्मेलिटी में चले जाता है, जिसकी वजह से अचानक उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आती है और हमारी ब्रेन सही तरीके से फंक्शन आउट नहीं कर पाता. तो उस समय में उसे मे बी न्यूरो डिसऑर्डर भी कहा जाता है या न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है. डीजनरेटिव यानी हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स, कुछ न्यूरॉन्स, कुछ पार्ट अचानक से डीजनरेट होना शुरू हो जाए तो नेचुरल है हमारी बॉडी
ये हमारा ब्रेन सही तरीके से फंक्शन आउट नहीं कर पाएगा, तो अपने आप में उसमें क्या आ जाएगी, एबनॉर्मलिटीज आएगी. दैट इज कॉल्ड द ब्रेन विच कैन बी जस्ट प्ले फ्रॉम द ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर, सो कॉल्ड एज द डिसऑर्डर. कि आउट ऑफ ऑर्डर काम करना शुरू कर देगा तो उसे कहा जाता है डिसऑर्डर. सो इस तरीके से ये है हंटिंगटन्स डिसऑर्डर. ओके, देन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस में हमें पढ़ना है पीकेयू हमारी सिलेबस में. चलो पीकेयू क्या है पता चल जाएगा. सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब होता है पहले तो वहां पर सिस्ट बन जाना. सिस्ट मतलब एक तरह का ट्यूमर जिसकी वजह से धीरे धीरे उस पार्ट को अफेक्ट करेगा, कमजोर कर देगा, और जिसे हम नाम देते हैं कैंसर. जिसे हम नाम देते हैं कैंसर, तो उसी को कहा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस. ठीक है, किसकी वजह से बोलता है वो? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. ऑटोसोम के जो जीन्स है लेकिन कैसे है? पूरी तरीके से दोनों जीन रिसेसिव होमोजाइगस पेयर में है. ओके, देन एससी एनीमिया, जैसे मैंने शॉर्टली लिखा है एससीए भी लिखते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ये भी उसमें आता है. ओके, तो इस तरीके से कुछ ऐसे डिसीज है, डिसऑर्डर्स है जो इन ऑटोसोमल इनहेरिटेंस से पाए जाते हैं. कुछ कोई ऐसा डिसऑर्डर एबनॉर्मेलिटी फॉर्म नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डिसीज और डिसऑर्डर एबनॉर्मेलिटी हमारी बॉडी में शोन करते हैं. ओके, अब कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी फॉर्म नहीं करते, जिसका एक एग्जांपल हम पढ़ने वाले विडोज पीक. सो व्हाट इज इट? विडोज पीक may be considered to that. Here, as for the 1 mark or 2 mark, it is a V-shaped hairline appear in both male and female. Means not to be found in only the female and not to be found in only the male. कि यहाँ पर कोई मेल या फीमेल में पाने वाला ये एक अकेला ऐसा कोई डिसीज नहीं, सॉरी नॉट इनहेरिटेंस, या ऐसा कोई अपियरेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं है. ये डिसीज या डिसऑर्डर नहीं है, ये जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर है. जो कौन सी जीन दे रही है, तो अभी अभी हमने हमने जो यहाँ पर देखा, तो उसमें से हम बोल सकते हैं कि विडोज पीक विच में बी इनबॉर्न, एक सेंटेंस और हमारा यहाँ बढ़ जाएगा. इनबॉर्न, व्हाट इज इनबॉर्न? इनबॉर्न एज द ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. ये कौन हो सकता है? मे बी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस इनबॉर्न. इनबॉर्न यानी जन्मजात, जन्म से ही हो सकता है. कंसिडर दैट ये कोई नए से हमारे लाइफ में अपीयर नहीं होता. कोई भी एज बढ़ रही है तो उसकी वजह से अपीयर हो रहा है, नहीं. सो तो मे बी इट इज वन ऑफ द विडोज पीक इज द मे बी इनबॉर्न ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. ओके, देन कंसिडर दैट ये दोनों मेल और फीमेल में इक्वल चांसेस होती है अपीयर होने की, जिसमें सिमिलर हमने क्या शो किया है? वी शेप हेयर लाइन. ओके, maybe it is caused due to the dominant homozygous genes as well as dominant heterozygous genes. सिर्फ डोमिनेंट होमोजाइगस से नहीं, जैसे कंसीडर करते हैं विडोज पीक के लिए जस्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज टू बी द कैपिटल डब्ल्यू. सिंबल कौन सा इस्तेमाल किया हमने? कैपिटल डब्ल्यू. तो हमेशा डोमिनेंट होमोजाइगस है तो कितना कैपिटल डब्ल्यू दिखाएंगे हम? इन अ पेयर ऑफ 2. तो यहाँ पर इस तरीके से ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीन जब अगर किसी में प्रेजेंट होंगे तो उसमें भी विडोज पीक अपीयर होगा, या अदरवाइज डोमिनेंट हेट्रोजाइगस जीन, यस हेट्रोजाइगस, वन हु शोन एज द कैपिटल एंड वन हु शोन एज टू बी द स्मॉल, बट कैरेक्टर अपीयर बाय द डोमिनेंसी. कंसीडर, तो इसे कहा जाता है डोमिनेंट हेट्रोजाइगस जीन्स. जैसे यहाँ पर आपको अंडरस्टूड करना है तो हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल टी विथ स्मॉल टी बट गिव्स एज ओनली द ट्रेट एज टॉल. बराबर है? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन ट्रेट कौन सी अपीयर करेगा? कैपिटल डब्ल्यू बाय द विडोज पीक. देन कंसीडर्ड एज द रिसेसिव होमोजाइगस जीन्स, स्मॉल डब्ल्यू कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू मिडल एज स्मॉल टी. तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पर उसके अपोजिट में रिसेसिव जीन की अगर हमें पेयर दिखानी है तो कैसे शोन करेंगे? स्मॉल डब्ल्यू एज द रिसेसिव होमोजाइगस जेनिक पेयर और जीन्स cause what? Straight hair. ये जिसे हम बोलेंगे straight hairline. In widows peak the hairs are grows extra. यहाँ थोड़े से एक्स्ट्रा होके ग्रोज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या अपीयर होता है? फोरहेड. हमारी इस फोरहेड पर अपने आप में कौन सी शेप की हेयरलाइन अपीयर होती है? वी शेप. चलो नीचे हमने यहाँ पर डायग्रामेटिक स्केच में देखा है. Consider that it is maybe the face of anyone who has the male or female. Consider that. तो उसमें से इस तरीके से ये हेयर मान के चलते हैं हमारे, ये फोरहेड है,
तो देखो दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? है। यहाँ पर ये जो हेयर से थोड़े से एक्स्ट्रा ग्रोन होके हमारी फोरहेड पर आ रहे हैं और जिसकी वजह से क्या अपीयर हो रहा है? वी शेप ऑफ द हेयर लाइन। ओके, देन कुछ ऐसे हैं जिनमें अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा हेयर फोरहेड पे नहीं, पूरी तरीके से ऐसे कर लोगे तो बिल्कुल प्लेन मार्जिन में उनके हेयर नजर आएंगे। दैट इज कॉल्ड एज टू बी द स्ट्रेट हेयर लाइन। इट इज एन अ स्ट्रेट हेयर लाइन caused by the homozygous recessive gene. No widow's peak caused as the recessive homozygous genes. And here is widow's peak like this V-shaped of the hairline may be caused by the homozygous dominant genes as widow's peak capital W. Sure. बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ये डिसीज डिसऑर्डर एब्नॉर्मेलिटी नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन है अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर से। क्लियर? श्योर? एक बार बताना है पक्का? ओके, थैंक यू। Then we have to discuss about the PKU. Mostly it is asked for 1 mark question or maybe short note based on a 2 mark. But according to paper setting, it is also sometimes asked in a board paper as the 3 marks. So what is the PKU? PKU, phenyl ketone urea. So phenyl ketone, phenyl of the derivatives is in the form of the phenyl ketone, but found in a urea, that is urine. So consider to conclude a word is the phenylketonuria and shortly as the PKU. Okay. It is inborn autosomal recessive disorder. Yes. ये कौन है? May be inborn, जन्मजात है, लेकिन autosomal recessive disorder है। ये अपने आप में autosomal recessive यानी ऑटोसोम पर जो recessive पेयर होती, पूरी पेयर, not a heterozygous, homozygous, दोनों रिसेसिव जीन्स की वजह से ही होती है। अगर कोई एक जीन रिसेसिव रहा तो ये डिसऑर्डर नहीं होगा। ओके, ये डिसऑर्डर किसकी वजह से? तो हमने कहा कि होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स की वजह से है। होमोजाइगस का मतलब है कि वो हमेशा अपने पेयर में होते हैं। द जीन्स विच इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, यस, क्या करता है? ये उसका मेन है, बेसिक यहाँ पर है उसका। ये जो जीन्स है, अगर ये जीन्स रिसेसिव है, हमने अभी अभी कहा कि ये रिसेसिव जीन्स की वजह से, अगर ये रिसेसिव है तो ये हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाता? क्या नहीं कर पाता? सो मे बी phenylalanine hydroxylase enzyme. Yes. Just before we have to discuss as maybe whole of the processes from top to bottom which can be maintained and regulated by enzymes and the hormones. हमने अभी अभी कहा है कि पूरी हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती है वो सारी क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स। बिल्कुल उसी तरीके से ये जीन अगर रिसेसिव होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हमारी बॉडी में phenylalanine hydroxylase enzyme नहीं बन पाता, जिसकी वजह से doesn't convert the phenylalanine, one of the amino acid, which doesn't to be converted into tyrosine, another one of the amino acid. phenylalanine भी एक अमीनो एसिड ही है और टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है, लेकिन फिनिलैलानाइन टायरोसिन में बदलता है, तो ये टायरोसिन हमारे बॉडी में यूज कर लिया जाता है। पर अगर ये नहीं बदल पाया तो फिनिलैलानाइन जो रह जाता है, ये अपने आप में अपने कई सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स बनाना, स्वरूप बनाना, फॉर्म बदलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये जो फिनिलैलानाइन है ये अपने खुद के इसी स्वरूप में एज अमीनो एसिड करके या उसके कई सारे अलग अलग फॉर्म बदल देता है, डेरिवेटिव्स बना लेता है, वो हमारी ब्लड एंड सीएसएफ में डिपॉजिट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन भी लोअर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ईच एंड एवरी जिस किसी पार्ट को सप्लाई कर रहा है वहाँ अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाता है। चलो, ब्लड तो आपको पता है। सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारी ब्रेन में बनता है और ब्रेन में पूरी तरीके से ब्रेन को एक सजग यानी एक एक्टिविटी में रखने के लिए एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड का एक काम करता है। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन दोनों में ये फंस जाता है, बैठ जाता है, एक्यूमुलेट डिपॉजिट होता है, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जब ये पूरा ब्लड घूम फिर के फिर से हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, तो फाइनली ये इसमें जो भी सब्सटेंसेस हमने कहा है कि इसकी जो डेरिवेटिव्स है ये अमीनो एसिड और जो भी इनकी जो फॉर्म्स है, जो गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ ऐसा बन के हमारे ब्लड और सीएसएफ में भर गया था,
वो अपने आप में एक तो हमारी यूरिन में पाया जाता है या अदरवाइज हमारी यूरिन से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। सो मे बी इस तरीके से अगर यूरिन में फिनिलएलानाइन कीटोन यूरिया नाम की जो डेरिवेटिव्स है या फिनिलएलानाइन अमीनो एसिड जो पाई जाती है, तो उस वजह से ये डिसऑर्डर डिसीज कहलाया जाता है एज द PKU। कंसीडर अगर फिनिलएलानाइन हमारी डोमिनेंट जीन की वजह से ये बनता, कौन बनता? एज फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो फिनिलएलानाइन हमारी बॉडी में इस्तेमाल किया जाता, वेस्ट आउट करके PKU नाम से बाहर फेंक दिया नहीं जाता। तो कैसे इस्तेमाल किया जाता? विच इज कन्वर्ट इजीली इज इनटू द टायरोसिन एंड टायरोसिन विच कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी एज द प्रोटीन। कंसीडर। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में सिर्फ एक छोटी सी एंजाइम की ना बनने की वजह से, कौन सी एंजाइम है वो? फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम ना बनने की वजह से हमारे शरीर का जो अमीनो एसिड फिनिलएलानाइन है, ये यूजेबल फॉर्म में हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती। कंसीडर। सो इन दिस वे वी हैव टू जस्ट स्टडी एज द PKU।